ناظرین آداب، A1 ٹی وی میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، شہر کے نواب گڈھے میں واقع خانقاہ دستگیریہ خمیسیہ میں ایک حلقہ ذکر اور جلسے کا انعقاد عمل میں لایا گیا، جس کی سرپرستی سید شاہ تاج الدین قادری الخمیسی سجانشین آستانہ عالیہ دستگیریہ و بانی دارالعلوم فیضان خمیسیہ نے فرمائی۔ اس میں بطور مہمانان خصوصی بارگاہ حضرت خطبہ ریچور کے سجادہ نشین مولانا سید شاہ اشرف رضا حسینی اشرفی اور مولانا جعفر خان صاحب خطیب و امام مسجد بی بی حلیمہ لوہارواڑی نے شرکت فرمائی۔ اس جلسے میں سید شاہ احمد پیر قادری الخمیسی بانی دارالعلوم انوار الحسن قادریہ سنگنوڑی کے علاوہ سید شاہ نبی پیر قادری الخمیسی، سید قادر پاشا قادری الخمیسی، سید شاہ پیر پاشا قادری الخمیسی، سید عزیز پاشا قادری الخمیسی نے بھی شرکت فرمائی۔ زیر ذلِ خواجہ داؤد تو آئی ہوں یہاں، کافی ہے یہ آسرا رد و بلا کے واسطے۔ خواجہ معروف ترقی کے وسیلے میں مجھے وہ شفاعت رحمت عالم خدا کے واسطے۔ جی رہا ہوں ایک عرصے سے مگر بے چین ہوں، خواجہ عبداللہ سے کی بقا کے واسطے۔ کیجئے مجھ پر کرم یا حضرت جنید، آپ بھی مشہور ہیں حاجت روا کے واسطے۔ ہیچ عاشق زمانہ زور کیوں کے ساتھ ہے، خواجہ ابو بکر شفیع بقا کے واسطے۔ عبد واحد کا اگر ہو فضل تو کیا بات ہے، آج ہی تیار ہو جاؤں فنا کے واسطے۔ ہے میرے ورد زباں پر پھر کیا عجب کی ایک رج، خواجہ یوسف ملے شاید عطا کے واسطے۔ یا اہل تارے حسن بگڑی بنا دیجئے میری مشکل۔ محمد رسول اللہ، لا الہ الا 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 اللہ، محمد رسول اللہ، لا معبود الا اللہ، لا معبود، لا معبود، لا معبود، لا معبود، لا مقصود، لا مقصود، لا مقصود، ہماری زندگی گنبد کے سائے میں، بس ایسی زندگی ہمیں سرکار چاہیے۔ یاد رکھیے کہ سرکار غوث اعظم کی بارگاہ کی طرف منسوب ہو چکا ہے خطبہ ریچور کے ذریعے، کیونکہ آج حضرت کا جو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ سفر المظفر کے اس ماہ میں 14-15 کو سرکار کا سندل عرص شریف زیارت منائی جاتی ہے، تو آج یہاں کے خانقاہ کے تمام تر مشائقین نے یہ سوچا کہ چلو ہم تو ہر ماہ 17 تاریخ کو محفل سجاتے ہی ہیں، آج اس محفل کو ہم سرکار غوث شمس عالم حسینی کی طرف منسوب کرتے ہوئے ایک جلسہ فیضان اولیاء کے نام پر منعقد کیا جائے۔ الحمدللہ یہ محفل منعقد کی گئی ہے، تو لہٰذا آپ تھوڑی دیر وقت کی قربانی دیں۔ ایسے تو میں جمعہ میں ہر جگہ خطبہ ریچور کے اور ان کے آب و اجداد کہاں سے تشریف لائے یہ تو بول ہی رہا ہوں، پھر بھی جو لوگ جمعہ میں ہمارے پاس حاضر نہیں ہوتے ہیں، ایسے کافی لوگ یہاں پر موجود ہیں، تو میں نے سوچا تھا ایک یہاں کی ذکر کو دیکھنے کے بعد میرے ذہن میں ایک بات آئی تھی کہ آج یہ ساری باتیں دیکھنے کے بعد ایک ہی ذہن میں بات آ رہی تھی، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب پر بول رہا ہوں، مگر
जब खुतबे रसूल की तरफ महफिल को मंसूब कर दिया गया है तो चलिए दिलों का इत्मीनान भी तो शम्स आलम हुसैनी का जिक्र भी है, दिलों का करार भी है। तो आइए मैं उसी के हवाले से आपके सामने बात करते हुए अपनी बात को ख़त्म कर दूंगा। मेरे प्यारे आका अलैहि सलाम के प्यारे दीवानों, शम्स आलम हुसैनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह वली कामिल हैं। आपके वालिद भी वली कामिल हैं, आपके दादा भी वली कामिल हैं। आप सब अल्लाह वाले हैं, आपके पूरे घराने में अल्लाह वाले हैं। आप ज़रा गौर करें, हज़रत सैयद शम्स आलम हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह के जद्दे अमजद सैयद जहां नशीर हुसैनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह गुलबर्गा शरीफ की सरजमीन पर फेरुज शाह बहमनी की हुकूमत थी, उसकी फौज में आप भर्ती हुए और वहां का बादशाह आपको अपनी फौज में रख लिया। चंद दिन के बाद वो बादशाह शिकार का बड़ा शौक रखता था। अपने फौजी एक बड़े दस्ते को लेकर वो शिकार करने की गरज से शिकार के लिए गया। जब वापिस अपने महल की तरफ आ रहा था, उसकी बेटी महल के ऊपर खड़े होकर बाप के आने का मंजर देख रही थी। तो अचानक लड़की ने क्या देखा, बादशाह की बेटी ने क्या देखा कि आसमान में दो घोड़ों पर नूरानी मखलूक उड़ते हुए नजर आ रही है। इस मंजर को बादशाह की बेटी ने देखा और जैसे महल में बादशाह आने के बाद जो मंजर उसकी बेटी ने देखा वो बयान कर दिया अपने बाप के सामने। तो बाप अल्लाह वालों का चाहने वाला था, बाप औलिया इकराम से मोहब्बत करने वाला था। उसने कहा कि बेटी लगता मेरी फौज में कोई अल्लाह वाले मौजूद हैं। तो उसने उसी वक्त अपने पास जासूसों को बुलाया और कहा कि मेरी फौज पे कड़ी सी कड़ी नजर रखो, कोई अल्लाह का वली जरूर है, जब भी पता चले मुझे इत्तला दे देना। तो जासूस नजरें रखे हुए थे, नजरें जमाए हुए थे, हर हाल में फौज पर नजर रखे हुए थे। अचानक चंद दिन के बाद गुलबर्गा शरीफ की सरजमीन पर एक तूफानी हवा निकलती है, आसमान से जोरों से बारिश बरसना शुरू हो गया। इस कदर हवाएं चलने लगी कि जमीन से उखड़कर दरख्त गिरने लगे, बिजलियां कड़कने लगी, बहुत तेजी से बारिश बरस रही है। मगर बादशाह के जासूस उसी अंदाज से ऐसे मौके पर भी वो फौज पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। अचानक उनकी नजर, जबकि हवाएं चल रही हैं, दरख्त उखड़कर गिर रहे हैं, बारिश जोरों से बरस रहा है, ऐसे वक्त में खुले मैदान में दो बुजुर्गाने दीन चिराग रोशन करके कुरान की तिलावत कर रहे हैं। आप जरा गौर तो करो सरकार के दीवानों, अल्लाह वालों की ताकत का अंदाजा लगाओ। इसलिए आज दुनिया का इंसान ये समझ रहा है कि मुसलमानों को सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाए, मुसलमानों को इस मुल्क से निकाल दिया जाए। इस तरीके के मंसूबे बनाकर प्लान बनाए जा रहे हैं। मैं आपको एक जहन देना चाहता हूँ, मुसलमानों को तो कत्ल कर सकते हो मगर मोमिन का लगाया हुआ चिराग नहीं बुझा सकते हैं। इसलिए कि मोमिन के लगाए हुए चिराग को दुनिया की कोई आंधी और तूफान भी नहीं बुझा सकती है, तो मोमिन को इस दुनिया से क्या मिटा सकते हो। मोमिन का मकाम और मर्तबा बुलंद व बाला है। हजरत के जद्दे अमजद ने चिराग लगाकर उसी बारिश में और वही हवा में कुरान की तिलावत कर रहे थे। जासूसों ने पीछे से देखा और देखते ही उन्होंने कहा कि यही तो अल्लाह वाले हैं कि इतनी बड़ी हवा में और पानी में और ये चिराग लगाकर कुरान पढ़ रहे हैं। फौरन जाकर बादशाह के दरबार में इत्तला दिए। उधर राज फाश हुआ, अहले दिल थे, इधर राज फाश हुआ, उधर उनको पता चल गया कि हमारा राज खुल गया है। तो इसी वक्त हम यहाँ से निकलेंगे और कहीं और चले जाएंगे। उसी हवा में, उसी बारिश में, उसी रात के अंधेरे में अपनी अहलिया को साथ लेकर, अपने भाई को साथ लेकर हजरत शम्स आलम हुसैनी के दादा वहां से निकल पड़े। चलते चलाते भीमा नदी के पास आए। भीमा नदी बड़ी तेजी के साथ बह रही थी, पानी तो बरस रहा था, हवाएं भी चल रही थी। अब नदी पार कैसे करें, तो आपके खांधे पर चादर थी, आपने वो चादर नदी पे बिछा दिया। और जैसे चादर बिछाना था, आप जरा गौर करें, जब उन्होंने नदी में चादर बिछाई तो जैसे पानी में चादर गई, चादर का काम है पानी में भोकर चले जाना, मगर भोकर नहीं जा रही है, वहीं पर खड़ी होकर बता रही है बिछाने वाला कोई और नहीं, अल्लाह का वली है।
चादर बता रही है, बिछाने वाला कोई और नहीं अल्लाह का वली है, तो गोया चादर पानी में बिछाने के बाद जाती नहीं है, ठहरी हुई है। और हजरत शमस आलम हुसैनी के दादा जान ने खुद अपने भाई को भी उस चादर पे ठहरा कर दिया, आप भी खड़े हो गए, अपनी अहलिया को भी रखे, 4 कोनों में 3 कोने, 3 जगह 3 अल्लाह वाले बैठ गए और एक कोना खाली था। अब कपड़ा इंतजार है कि हुक्म दे कि किधर जाओ, तो नदी का पानी का बहाव इस तरफ था, मगर हजरत शमस आलम हुसैनी के दादा चादर को कहते इधर जाना है। तो गोया के अल्लाह वालों का मामला देखो, वो पानी पर भी अपनी हुकूमत का सिक्का चलाते हैं, वो हवाओं पर भी अपनी हुकूमत का सिक्का चलाते हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, औलिया इकराम को मजबूर मत समझना, औलिया इकराम को लाचार मत समझना। अल्लाह ने वलियों को ये पावर और इख्तियार दिया है, अगर वो ठोकर मार दे तो मुर्दे भी जिंदा हो जाते हैं, अगर वो चाहे तो पानी पर भी चलाते हैं, और अगर वो चाहे तो पानी पर भी अपनी हुकूमत का सिक्का चलाते हैं। वो चादर चलते चलाते भीमा नदी के किनारे चले जाती है, उस दरमियान में नदी में, उसी दरमियान में एक साइड का कपड़ा जहां पर खाली था वो हरकत में आ गया। जैसे हरकत में आ गया, हिलने लगा, तो हवा एक गैबी आवाज आती है, जलालुद्दीन की आमद है। ये जगह किसी और की नहीं, जलालुद्दीन की है, जलालुद्दीन की है। ये सैयद जलालुद्दीन कौन है? ये गोगी चंदा हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह हैं, अभी माँ के शिकम के अंदर मौजूद हैं, अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए। अल्लाह अकबर। अब वो चादर का कपड़ा जाकर एक किनारे लग जाता है। अब वहां से निकलकर रायवाड़ी में पहुंचे, अचानक हजरत शमस आलम हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह के जद्दे अमजद ने देखा, उनकी अहलिया को दर्द ज़े शुरू हुआ, दर्द ज़े शुरू हुआ। थोड़ी देर के बाद आवाज आती है, कपड़ा निगल लो, जलालुद्दीन की आमद है, जलालुद्दीन की आमद है। 3 बार जब आवाज आई तो मस्के कपड़े को मस्का लगाकर वो कपड़ा निगल लिया जाता है, और जैसे ही कपड़ा निगलना था उसी कपड़े को सैयद जलालुद्दीन हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह उर्फ गोगी चंदा हुसैनी रहमतुल्लाह ताला अलैह तहबंद बांध कर पैदा होते हैं, तहबंद बांध कर पैदा होते हैं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तहबंद बांध कर पैदा होते हैं। जब एक अल्लाह के वली, ये सहाबी नहीं है, ताबी नहीं है, एक अल्लाह के वली हैं। जब अल्लाह के वली की विलादत का ये आलम है तो मुस्तफा जाने रहमत की विलादत का आलम क्या होगा, रसूल की शान का आलम क्या होगा। ऐ सरकारे मदीना के दीवानों, इसीलिए तो कहा गया है अहले बैत को मजबूती से थामे रहो, क्योंकि अल्लाह वाले ही हैं जो इंसानों की रहनुमाई यहाँ भी करेंगे, कल क़यामत के दिन भी वो रहनुमाई करके अल्लाह के जलाल से बचाकर अपनी चादर में छुपाकर जन्नत में लेकर जाएंगे। इसलिए हम अहले बैत से जुड़े हैं, इनसे मोहब्बत करते हैं और करना भी चाहिए। इसलिए रसूल करीम ने फरमाया है, जो मेरी अहले बैत की मोहब्बत में मर गया वो मोमिन मरा, और जो मेरे अहले बैत से बुग़्ज़ रखकर मरा वो काफिर होकर मरा। हम अहले बैत से मोहब्बत करते हैं। हमारा और आपका यहाँ जमा होने का एक ही मकसद है, हमारे दिल में ना कि सिर्फ शमस आलम बाबा, बल्कि हमारे दिल में हजरत सैयद दस्तगीर अल खुमैसी रहमतुल्लाह अलैह की भी मोहब्बत है, हमारे दिल में बंदा नवाज की मोहब्बत है, हमारे दिल में रुकनुद्दीन तोला की मोहब्बत है, हमारे दिल में खलीफतुर रहमान बाबा की मोहब्बत है, हमारे दिल में शेख सालार की मोहब्बत है, हमारे दिल में शेख मियाँ बाबा की मोहब्बत है, हमारे दिल में अलाउद्दीन बाबा की मोहब्बत है, हमारे दिल में हजरत सैलानी बाबा की मोहब्बत है, हमारे दिल में मखदूम शाह बाबा की मोहब्बत है, हमारे दिल में शेख अली शहीद की मोहब्बत है, हमारे दिल में कुल औलिया अल्लाह की मोहब्बत है। कसम खुदा की, जिसके दिल में इन सब की मोहब्बत होगी वो दोज़ख में जा ही नहीं सकता है, क्योंकि मेरे नबी ने कहा है जो जिससे मोहब्बत करेगा क़यामत में उन्हीं के साथ उठाया जाएगा, उन्हीं के साथ उठाया जाएगा। अब जब हम इनसे इतने लोगों से मोहब्बत करते हैं तो सब क़यामत के दिन होंगे। हमारा ईमान है हुजूर के फरमान के मुताबिक हम इन्हीं के साथ उठाए जाएंगे, इन्हीं के साथ उठाए जाएंगे। ऐ मोहब्बत की महफिल में आने वालों, अपने दिलों में मोहब्बत पैदा करो। ये पैगाम देता है औलिया इकराम की महफिलों का ये मंशा होता है कि मोहब्बत को पैदा करो। मोहब्बत ही सबसे बड़ी चीज है। मोहब्बत, एक मुरीद के दिल में पीर की मोहब्बत, एक बेटे के दिल में माँ बाप की मोहब्बत, माँ बाप के दिल में औलाद की मोहब्बत। मोहब्बत बहुत जरूरी है। आज हमारे दिलों में नफरत की बीज बोई जा रही है, हमारे दिल नफरत बन चुके हैं, एक दूसरे को देखकर जलना, एक दूसरे के खिलाफ बोलना, हम आदी बन चुके हैं। ये खत्म कर दो। औलिया इकराम का ये मिशन नहीं है, औलिया इकराम की ये तबलीग नहीं है। औलिया इकराम तो नफरतों को मिटाने निकले हैं, औलिया इकराम तो टूटे हुए दिलों को जोड़ने के लिए निकले हैं।
हैं, औलिया इकराम अपने घरों की कुर्बानी अपने माँ बाप को छोड़कर क्यों आए हैं। कल मगरिब की नमाज में हमारे पास बाद नमाज मगरिब प्रोग्राम था। सैयद अशरफ रजा साहब ने एक बहुत अच्छा जुमला कहा, सबसे बड़े मुबल्लिग अगर कोई है तो शमस आलम हुसैनी है, क्योंकि वो ऐसे मुबल्लिग हैं। आजकल के मुबल्लिगों के साथ हम तशबीह नहीं दे सकते। वो मुबल्लिग ऐसे मुबल्लिग थे कि कोई आदमी जब किसी दीन के काम के लिए जाता है, घर याद आता वो वापिस आता है। अगर वो कहीं भी जाए दीन के काम के लिए, घर याद आया तो वापिस आया, वतन छोड़ के गया तो वतन याद आया वापिस आया। मगर खुतबे रैचूर की अजमत पर कुर्बान जाऊं, जब उनके वालिद ने 18 साल की उम्र में जब रवाना कर दिया, ऐ अहमद शमस आलम हुसैनी तुझे तो जाना है दीन का काम करने के लिए, जब घर से निकले आप पलट कर वापिस अपने घर गोगी नहीं लौटे, यहीं पर आपका मस्कन बन गया। और ये हमारे रैचूर वालों की खुश नसीबी है। आप जरा गौर करें, क्या सैयद शमस आलम हुसैनी के दिल में अपनी अम्मी और वालिद और वालदा की मोहब्बत नहीं थी, मगर ये सब मोहब्बत रसूलुल्लाह पर फिदा कर चुके थे, रसूल के दीन के लिए फिदा कर चुके थे। आप जब घर से निकले वापिस पलट कर नहीं गए, ये जुमला कल बड़ा अच्छा लगा। तो आप गौर करें कि खुतबे रैचूर जब तशरीफ लाए रैचूर तो वापिस गोगी नहीं गए। मैं तफसीली वाक़िया बता दूंगा, आपके सामने अर्ज करना चाहता हूँ। जैसे ही रायवाड़ी में पहुंचे, जलालुद्दीन की आमद है, मस्के में आपने कपड़ा रखा और उसको खा लिया और तहबंद बांध कर आप पैदा हुए। वो आने वाले कोई और ने गोगी चंदा हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह थे, और सर्दी थी। हर आपको मालूम होना चाहिए जब भी कोई औरत बच्चा जनती है उसे गर्म चीजों की जरूरत पड़ती है, मगर अहले बैत के घराने वालों का मामला तो देखो, अल्लाह वालों का मामला तो देखो, क्योंकि अल्लाह की वलिया थी, रसूलुल्लाह के खानदान के चश्मो चिराग थे। उसी सर्दी में अब बच्चे को कहाँ रखें। अचानक आसमान से गहवारा आया, उसी गहवारे में बच्चे को रखा गया। वो गहवारा उड़ता हुआ चलते चलते उड़ते उड़ते गोगी शरीफ में जाकर दरख्त को लग गया, दरख्त को लग गया। और जब दरख्त को लगा, कई दिन के बाद आपके वालिद और वालदा बच्चे की तलाश में निकलते हुए गोगी पहुंचे तो देखा कि गहवारा दरख्त को लगा है, और गहवारे के अतराफ और अकनाफ चिड़िया अल्लाह का जिक्र कर रही, और गोगी चंदा हुसैनी झूले में गहवारे में लेटे लेटे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। जब भी भूख लगती है अल्लाह उनके अंगूठे में दूध अता कर देता है, अल्लाह उनके अंगूठे में दूध अता कर देता है। ये गोगी चंदा हुसैनी शमस आलम बाबा के वालिद हैं। आपके 4 बेटे हैं। गोगी चंदा हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह के कितने बेटे हैं? 4 बेटे हैं। चारों के चारों वक्त के अल्लाह वाले हैं, चारों के चारों भी वक्त के अल्लाह वाले हैं। खुतबे गोगी बता रहे हैं, अपने औलाद की तालीम अच्छी दो, अपने औलाद को भी सांचे में ढालो, अपने औलाद को भी इल्म की दौलत से मालामाल करो, अपने औलाद की भी तस्किया नफ्स किया करो। आज हमें जरूरत है कि हम भी अपने बच्चों को तालीम दें, हम भी अपने बच्चों को रसूलुल्लाह की मोहब्बत बताएं, हम भी अपने बच्चों को इमाम हुसैन की मोहब्बत बताएं, हम भी अपने बच्चों को इमाम ज़ैनुल आबिदीन की मोहब्बत बताएं। रात में बच्चे को झूले में सुलाते वक्त टीवी का सीरियल मत दिखाएं, बल्कि अपने बच्चे को झूले में झुलाते झुलाते नाते मुस्तफा पढ़ो, बच्चा भी आशिक रसूल बन जाएगा। अगर बच्चे को खिदमत करते करते बच्चे को अगर आप खिदमत कर रहे हैं, उसे कपड़ा पहना रहे हैं और उस बच्चे की आप खिदमत अंजाम दे रहे हैं, तो हुजूर के मोजिजात का तस्कीरा छेड़ो, ताकि तुम्हारे बच्चे के दिल में बचपन से हुजूर की मोहब्बत दिल में उतरेगी। कोई वहाबी और तबलीगी उसका ईमान नहीं छीन। अर्ज करते बादब सारे गुलाम, शम्स आलम गमज़दों का लो सलाम। अर्ज करते बादब सारे गुलाम, अर्ज करते बादब सारे गुलाम, शम्स आलम गमज़दों का लो सलाम, शम्स आलम गमज़दों का लो सलाम। किसने क्या
दाल